writing. Now we are coming to a very important topic, conjunctions. Conjunctions आपने बचपन से किए होंगे. The interesting thing is कि ये कोई भी आप नई चीज नहीं कर रहे हैं. आपने phrases पहले किए होंगे, आपने clauses पहले किए होंगे, आपने conjunctions पहले किए होंगे. But still there are certain things which maybe are not clear at certain points. So we will just see how can we bring in more clarity here. Okay. So what are conjunctions? तो जैसे मैंने आपको कल स्टेशनरी के लिए बताया था कि स्टेशनरी से जो स्टेशन है, स्टेशन में जब ट्रेन आके थम जाती है, दैट इज द प्लेस, मतलब वेयर द ट्रेन इज स्टिल, स्टेशन. If the train is at the station, it is stationed there. It is standing still there, है ना? So वैसे ही conjunction, इसको भी मैं travel से relate करती हूँ. And why are we doing it? So that you have those images and then it becomes easier to connect those images. तो जब भी आप travel करते हैं and जैसे नागपुर is a junction, Bhusawal is a junction, Jhansi is a junction. So these large places, stations are junctions. Why are they junctions? Because you will find trains connecting there. If you have to travel to, suppose आप झांसी पहुंच गए और झांसी से आपको अहमदाबाद जाना है, and there is no direct train from Nagpur to Ahmedabad, so maybe you can travel to Jhansi and then find the connecting train from Jhansi to Ahmedabad. So these places become the junctions because they are connecting routes, they are connecting people, they are connecting travel, है ना? तो ये connection के लिए वहां पे junction बन गए. तो वैसे ही junction से connection से याद कीजिए, English में भी conjunctions. So conjunctions का भी क्या काम है? Connecting, linking together. So पहले वो इमेज बना दी हमने जंक्शन की, वो जंक्शन की इमेज याद रहेगी तो आपको कंजंक्शन भी याद रहेगा कि भैया जंक्शन में हम कनेक्ट करते हैं. तो कंजंक्शन भी काम है कि वर्ड्स को कनेक्ट करना. अब आपका वर्ड जो जा रहा है, अगर वो नागपुर से बॉम्बे जा रहा है तो इट हैज टू ट्रैवल इन दैट लीनियर प्रोग्रेशन कि भैया वो नागपुर से बॉम्बे ही पहुंचे. वो चला तो नागपुर से बॉम्बे पर पहुंच गया वो भोपाल, तो आपका सेंटेंस भी गड़बड़ हो गया. तो why am I giving these examples? Just to bring in a little clarity कि हमारे sentences का भी एक path होता है जिस पे वो आगे शब्द बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते वो सही डायरेक्शन में चलते रहे तो हमारा रास्ता क्लियर रहेगा. पर वो शब्द इधर उधर आड़े तेड़े मुड़ गए तो रास्ता हमारा एम्बिगुअस हो जाता है. वी डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग. So conjunctions play the role of connecting the words, connecting the phrases, connecting the clauses, connecting the sentences. So that is why they are very important. Of conjunctions, can anybody tell me, could anybody give me examples of conjunctions, some of the conjunctions? क्योंकि ये तो आपने किसी भी क्लास में कभी भी 12th तक सभी ने इंग्लिश करी होगी और ये आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा. So any examples of conjunctions, or if anybody to pursuing English, then Meenakshi ma'am or anyone, Yes, ma'am. yeah, please tell me if I mean anything to share about conjunctions, क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, anything. Conjunctions, just as you said, they are the linking words which join two different sentences. There are basically four kinds of conjunctions: coordinating, correlative, subordinating, and one more. There are three kinds: coordinating, subordinating, and correlative. Yes. अच्छा, Okay. conjunctive Ma'am, can adverbs I are give you talking examples? about? Ma'am, Conjunctive can I give adverbs? examples? Yeah. The fourth kind could be conjunctive adverbs. So they sometimes adverbs also work like conjunctions.
Yes. Yes, ma'am. Yeah, please give examples, Neha ma'am. Or Yeah, who is like giving? and, as, because. Absolutely correct. So can you give me, could you please give me the example of ये coordinating conjunction है, ये subordinating conjunction है, दोनों में Coordinating contains and, but, so, yet, still. हाँ, okay. Subordinating when, where, that. These words correlative, not only but also, although, yet. हाँ, and conjunctive adverbs? They are like either or, neither nor. No, ma'am. Mm, They are the compound conjunctions, either or, neither nor. अच्छा, compound conjunctions, and then uh, therefore, however, ये Yeah, वाले जो they're they are adverbs. Yeah. conjunctive adverbs. So neither nor and compound conjunctions, I don't know, I've not heard of it, but anyways we will just see this. So agar hum bolenge, what is the difference between subordinating and coordinating conjunctions? Anyone? Okay, so we will, so there are some interesting things to learn. So there are Ma'am, can two you hear me? kinds of basically, yes please Meenakshi ma'am. What is the difference between the two? तो ठीक है, हम अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे आ गए. बड़ा इजी है इनको याद करना. फैन बॉयज, बस ये याद कीजिए. और सो है वहां पे, स्टिल की जगह सो है. सो फॉर एंड नॉट, बट और येट सो, ये आपके फैन बॉयज. फैन बॉयज इज द एक्रोनिम. सो F stands for and, nor, but, or, yet, so. तो ये आपके कंजंक्शंस हो गए कोऑर्डिनेटिंग. अब ये कंजंक्शंस का क्या फंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का क्या फंक्शन है, वो हम अभी समझेंगे. तो फैन बॉयज याद करना इजी है. मैं थोड़ा सा पूछती हूँ, फैन बॉयज में क्या क्या आएगा? फॉर, and, nor, but, or, yet, so. 7 कंजंक्शंस हैं, आप इसको लिख लीजिए. और बस ये याद रखिए कि these are the only 7, only these 7 are the coordinating conjunctions. इसके अलावा coordinating conjunctions में आएगा ही नहीं. और इनकी खास बात क्या है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाले कंजंक्शन यूज करेंगे. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट, दो वर्ब्स अगर आ रही हैं तो वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए. या दो से ज्यादा है, 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब्स आ रहे हैं, तो वो 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए हैं. तो ये हमारे वो हो जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. तो वहां पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करते हैं. और खाली सब्जेक्ट वर्ब से तो होगा नहीं, कुछ और भी इसमें है झोल, व्हिच वी विल जस्ट सी. तो इनका पहले तो कंजंक्शंस का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है. तो फॉर का, फॉर किस लिए यूज होता है? रीजन के लिए. आई रीच्ड कॉलेज ऑन टाइम फॉर देयर वाज नो ट्रैफिक ऑन द रोड. तो फॉर के लिए कॉज, और कॉज के कारण बिकॉज. तो बिकॉज भी रीजन को डिनोट करता है, कॉज रीजन को डिनोट करता है, फॉर रीजन को डिनोट करता है. तो जब भी आप एक कारण बताना चाह रहे हैं तो वहां पे आप फॉर को ले आइए. हमेशा कंजंक्शन का एक फंक्शन होगा, तभी आपके वो कंजंक्शंस एप्रोप्रिएटली यूज होंगे.
क्योंकि आप बताते बताते क्या बताना चाह रहे हो, तो आप बताना चाह रहे हो, रीजन देना चाह रहे हो, तो आपका फॉर आ गया। आप कभी कभी एडिशन करना चाह रहे हो, एडिशन कैसे करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ से चले, आप बॉम्बे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा आप समृद्धि मार्ग से जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अकोला जाएंगे, फिर अकोला से आगे मे बी जलगांव जाएंगे, फिर जलगांव से बॉम्बे जाएंगे। ये सारी चीजें आपके बॉम्बे के रास्ते में आ रही हैं। आप अकोला, आई वेंट टू अकोला एंड जलगांव एंड देन आई रीच्ड बॉम्बे, क्योंकि आपका लीनियर प्रोग्रेशन है। पर अगर आप भंडारा गए और आपको जाना बॉम्बे है, तो आप नागपुर में हैं, आप भंडारा गए, परंतु आपको जाना बॉम्बे है, तो अब क्या हो गया कि भंडारा मतलब आपका रास्ता बदल गया। तो जब रास्ता बदल जाता है तब उसे बट कहते हैं। मतलब आपने आइसक्रीम खरीदी, और आइसक्रीम खरीदने के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन क्या है, यू आर गोइंग टू ईट दैट आइसक्रीम। परंतु अगर आपने वो आइसक्रीम नहीं खाई, कंट्रास्ट हो गया, तो बट आ जाता है। तो बट ऑलवेज शोज कंट्रास्ट। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट वी डिड दिस, we decided to go on a holiday and we went to Maldives. Wonderful. We decided to go on a holiday, but at the last moment we cancelled the program. तो contrast हो गया, opposite हो गया। तो एंड में सीधा सीधा चलता चाहिए चाहिए। आई वॉन्टेड टू गो टू अकोला बट आई रीच्ड भंडारा। I wanted to go to Akola and I had already reached Amravati. तो अमरावती आप पहुंच ही रहे थे, तो आप अकोला भी पहुंच ही जाएंगे। But I reached maybe कामठी, तो उल्टा रास्ता हो गया, तो फिर कंट्रास्ट हो गया। तो एंड और बट में ये है, एडिशन है एक और एक कंट्रास्ट है। बट की जगह हाउएवर भी आता है, तो वो हम अभी करेंगे आगे। जब ऑल्टरनेटिव की बात होती है तब हमारा और आएगा, ऑप्शंस की बात होती है। आई कुड हैव टेकन अप अ जॉब इन मुंबई और बॉम्बे, सॉरी इन मुंबई और बैंगलोर। I could have, we could have gone for a holiday to Uttarakhand और हिमाचल प्रदेश। So ये ऑप्शन है यहाँ या यहाँ। एंड अगर रीजन फॉर है, फॉर माने रीजन, तो रीजन का हमेशा कॉज का एक इफेक्ट होता है, एक कारण होता है, एक कारण का परिणाम होता है। तो बिकॉज आई वॉज रनिंग लेट, सो I missed the deadline. Because ये reason, ये कारण, ये तो ऐसे cause and effect चलता रहता है। तो cause आपका denote होता है for से, और reason denote होता है so से। Therefore, है ना, as a result, consequently, subsequently, ये सब so में आएगा। और yet का क्या काम है? अब जब बट का काम भी कंट्रास्ट है और येट का काम भी कंट्रास्ट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो येट जो है वो ऐसा कंट्रास्ट है जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जो बट वाला कंट्रास्ट तो मैनेजेबल है। अब जैसे हमने कहा था कि आई हैड ऑर्डर्ड एन आइसक्रीम एंड आई एट इट, आई हैड ऑर्डर्ड एन आइसक्रीम बट आई डिड नॉट ईट इट, I had not ordered an ice cream, yet I received a family pack. तो मैंने तो ऑर्डर नहीं की थी, परंतु फिर भी मुझे फैमिली पैक मिल गया। ये तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज कंट्रास्ट हो गया। सो येट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे I the student studied for the examination and topped the university. Expected है कि भैया कोई पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी को टॉप कर सकता है। He studied, he worked very hard, but did not top the examination. Contrast हो गया। He did not study at all, yet topped the examination. तो ये बिल्कुल सरप्राइज कंट्रास्ट हो गया। ठीक है,
और का मैंने बताया ऑप्शंस, नॉर का नथिंग, नेगेटिव, नाइदर दिस नॉर दैट. So I didn't want to be a doctor nor an engineer. मुझे ना डॉक्टर बनना था ना इंजीनियर बनना था. Okay, so these are the functions of conjunctions, and then we go to इनके लिए यूज कैसे किया जाता है. तो जैसे इनको याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल है इफ यू हैव चिल्ड्रन एट होम, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, और आपको अगर इसके बारे में और नॉलेज जाननी है तो आप इंटरनेट पे भी बहुत ढूंढ सकते हो. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आपका रीइंफोर्समेंट हो जाएगा. वन थिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए तो है ही है, बट इसके अलावा भी जो एक टीचर का हमेशा की परस्यूट ऑफ नॉलेज रहती है कि मुझे और सीखना है और सीखना है, बिकॉज टीचर्स आर ऑलवेज लर्नर्स. सो दिस इज जस्ट अ डायरेक्शन कि आप इसमें बहुत ज्यादा और आगे बढ़ सकते हो, सीख सकते हो. तो सम एग्जाम्पल्स आते हैं. वी लिसन्ड ईगरली फॉर, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं. तो हमारे को, अब हमने कहा था इसके साथ पंक्चुएशन आ जाएगा. तो पंक्चुएशन क्या आता है, इसके साथ हमेशा कॉमा लगेगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ ऑलवेज यूज अ कॉमा, दैट इज अ रूल. ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. मतलब अगर आपने कॉमा यूज नहीं किया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस चल रहे हैं. वी लिसन्ड ईगरली, he brought news of our families. दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं. आपने फॉर से इसको ज्वाइन किया, कॉमा आना मस्ट है. एंड से पहले भी कॉमा आना मस्ट है, क्योंकि बहुत बार वी डोंट नो कि एंड से पहले कॉमा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है. मैंने, बिकॉज आई रिसेंटली रोट अ बुक, so I would also get confused at times, but because ये academics writing कर करके my my basics and fundamentals have become so clear that I mean there were so many putting it into application really helped me so much कि कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ सेमीकोलन होना चाहिए, कहाँ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, everything. So as a result the book is gathering a lot of appreciation from everywhere. Like people are really appreciating because the writing style is easy, everything is flowing in that. So पंक्चुएशन का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो पंक्चुएशन अगर इधर उधर हो गया तो आपका मीनिंग चेंज हो जाता है ना. तो हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले कॉमा आना मस्ट. इज दैट क्लियर? शैल वी गो ऑन? बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है. 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले आप कॉमा लगा दीजिए, याद रहेगा. यस, Yes, ma'am. आगे बढ़े. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें बस ये फंक्शन क्या था, फॉर किस लिए था, कैन एनीबडी टेल मी? Ma'am, one doubt. हाँ जी प्लीज. I don't know whether I'm right or wrong, but ऐसा बोला जाता कि and के पहले comma नहीं लगता है something like that. हाँ जी बिल्कुल. आई एम सुपर हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई एम, बिकॉज आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे को क्लैरिटी के लिए और मौका मिल जाता है. आपका बिल्कुल सही है, पर इसके लिए एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर यहाँ पे she didn't speak to anyone, अगर एक ही सब्जेक्ट है और दो प्रेडिकेट हैं तो कॉमा नहीं लगेगा. she didn't speak to anyone and did not fight with anyone. So she did not speak to anyone and did not fight with anyone. फिर से she नहीं बोला मैंने. She did not speak to anyone and did not fight with anyone. तो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है और दो वर्ब्स हैं तो कॉमा नहीं लगेगा. This is called Oxford comma, and this is very essential in academic writing.
स्कूल्स में क्या होता है कि सिखाते नहीं है, और ये इसके पीछे रीजन ये है कि इसकी टेक्निकलिटीज, एंड वी आर डूइंग मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, तो इसकी टेक्निकलिटीज क्या है? अगर सिंगल सब्जेक्ट है एंड 2 प्रेडिकेट्स है, then you will not use this comma. But if there are 2 subjects and 2 predicates, then you will use this comma. In fact, अगर आपकी लिस्ट भी चल रही है चीजों की, आप लिख रहे हैं कि आई नीड दिस 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 दिस, और लास्ट के पहले एंड आ गया, तो हम पहले क्या करते थे? एंड के बाद लास्ट वर्ड लिखा एंड देन वी वुड क्लोज द लिस्ट. बट नो, उस एंड के पहले भी कॉमा आना है. So that is the rule of academic writing. I just hope that schools start following this, because whenever I take workshops for teachers, I always mention this. कि ये जो punctuations हैं ये वहीं से clear होने चाहिए. So sir, यहाँ पे अगर she was the single subject and there were 2 predicates, then there will be no comma. But if there are 2 subjects and 2 predicates, then there is a comma. This comma is called the Oxford comma, and it is essential in academic writings. Yes, and in schools, it is often not dealt with at all. In some schools, I mean, in some of the schools, they are very careful about it. Okay? Thank you, ma'am. Yes. So ऐसे तो और के बाद भी नहीं होता है, तो I am going to be doing punctuations with you, then we will understand this in more detail. ये हमारे correlative conjunctions है जिसपे हमें neither nor वगैरह जो भी आपने बोला था मैम, everything comes in correlative conjunctions. So neither nor, either or, not only but also, whether or, मतलब relation है conjunctions के बीच में, they will fall into the category of correlative conjunctions. But we are not doing correlative conjunctions क्योंकि इनके साथ कोई punctuation rules का ज़्यादा challenges नहीं है. We are just understanding this. अब जैसे यहाँ पे hardware and software है, there is no comma in between. Either or है, carrot or peas. तो यहाँ पे क्यों comma नहीं है? Because there are only 2 things that we are talking about: hardware and software, carrots or peas, neither milk nor cream cake, noodles or rice. पर अगर ये होता नूडल्स, राइस और कैरेट्स, तो नूडल्स कॉमा राइस कॉमा और पैनकेक्स या व्हाटएवर आता. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, we will be doing this in detail अभी जब हम punctuations करेंगे. So not only studies but also works well. तो ये correlative conjunctions में कोई punctuation का आपको challenge नहीं आता है. आपके conjunction के साथ कोई rule नहीं है, इसलिए this is very easy. इसमें आपको बस ये देखना है कि correlative conjunction है, 2 join हो रहे हैं, ठीक है, it's okay. ठीक है. Now we go to subordinating conjunctions. So correlative conjunctions जो नहीं है, जो coordinating conjunctions नहीं है, उसके बाद हमारे पास subordinating conjunctions की एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है. और ये करना और इसके बाद conjunctive adverbs करना, वो आपकी राइटिंग में 4 चांद लगा देता है जब आप इसको सही तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं. तो कंजंक्शंस भी क्यों हम यूज कर रहे हैं? Either we are comparing something. So when we are comparing, it becomes rather than, as much as, whereas, than, whether. Sometimes we are denoting time. तो again ये हमारे सारे words आ जाते हैं. हम कोई कंडीशन बयां कर रहे हैं तो ये कंजंक्शंस आ जाएंगे. रीजन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, बिकॉज, सिंस, दैट, एज. पर्पस हो सकता है, पर्पस के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट. कंसेशन, दो, ऑल्दो, इवन दो. प्लेस और मैनर. तो टाइम, प्लेस, मैनर ये याद रखिए. फिर आपका कंडीशन, कंसेशन, रीजन, पर्पस और कंपैरिजन. ये लिखते समय हम क्या डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर
पर मैं टाइम डिनोट कर रही हूँ, कंसेशन डिनोट कर रही हूँ, कंसेशन डिनोट कर रही हूँ, पर मैंने अगर कंपैरिजन का कंजंक्शन लगा दिया तो एवरीथिंग विल चेंज. सो आई शुड बी वेरी केयरफुल विथ व्हाट कंजंक्शन आई एम यूजिंग वेयर. अब हम आते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स पे. सो हमारे पहले थे coordinating conjunctions, फिर correlative conjunctions, फिर subordinating conjunctions, and then conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs भी बहुत easy हैं, not difficult at all. इनको हम कहते हैं therefore, however, also, moreover, otherwise. तो ये conjunctive adverbs में भी हमारे punctuation थोड़े से change हो जाते हैं. और वो कैसे change होते हैं? इनमें हमारा सेमी कोलन आ जाता है. तो वी विल बी डूइंग ऑल द पंक्चुएशंस. पहले हम इसे खाली समझ लेते हैं. These are again they show the relationship between two complete thoughts. My parents are out of town. है ना? अब यहाँ पे सेमी कोलन, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब, फिर कोलन आ रहा है. My brother wants to go to the park. However, comma, it is raining. अगर यहाँ पे ये फुल स्टॉप नहीं होता तो यहाँ पे सेमी कोलन होता. फिर यहाँ पे भी जैसे meanwhile के पहले भी सेमी कोलन देन कॉमा, अदरवाइज के पहले भी सेमी कोलन देन कॉमा. तो जब भी ये थैमो, therefore, however, also, meanwhile, otherwise, इनको आपको याद रखना है. इससे पहले सेमी कोलन एंड आफ्टर द वर्ड कॉमा आना जरूरी है. और अगर आप सेंटेंस से शुरू कर रहे हो तो फिर इसके बाद कॉमा आना चाहिए. सो देयर आर सम एग्जांपल्स हियर. कैन एनीबॉडी रीड दिस? कुड एनीबॉडी रीड दिस प्लीज? एक्चुअली कैन एनीबॉडी रीड दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है. बट इफ आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट आई शुड से कुड somebody read this please. That's the right way. पर हम बोलचाल की भाषा में कितनी बार हम ऐसे बोलते हैं, कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ड्रॉप मी, कैन यू गेट दिस फॉर मी. कर सकते हैं. Polite way of asking is could you please. So my question to everyone is could anyone please read this? Ma'am, should I read it? Yes, absolutely. Jeremy kept talking in class, therefore he got in trouble. Mm-hmm. She went into the store, however, she didn't find anything she wanted to buy. Hmm. I like you a lot. In fact, I think we should be best friends. Hmm. Your dog got into my garden. In addition, he dug up the flowers. You are my friend. Nonetheless, I feel like you are taking advantage of me. My car payments are high. On the other hand, I really enjoy driving such a nice vehicle. Thank you so much. So the conjunctive adverbs are highlighted in bold, and you can see that there is a semicolon and a comma after each conjunctive adverb. So ये conjunctive adverbs क्या बताते हैं हमें? ये ज्यादातर जैसे your dog got into my garden, then what did the dog do? He dug up the flowers. You are my friend. What next? I feel like you are taking advantage of me. So they are adding up more information, and each sentence is complete in itself. So this is for conjunctive adverbs. There are many conjunctive adverbs आपके लिए, पर अब हम joining clauses पे आ जाते हैं. तो joining clauses तो ये है conjunctive adverbs की list है ये. अगर इन सबको जब आप लिखेंगे तो अगर if you want to take a screenshot then you can take the picture, but remember कि आप जब भी इनको use करेंगे तो you will use a semicolon first and then a comma after this. Okay? तो अब हम आते हैं clauses को join करने के rules पर. तो conjunctions हमने 4 types के किए.
We did coordinating. Could anybody please share what are the 4 types of conjunctions that we did? Coordinating, subordinating, correlative, and conjunctive adverbs. Yes, conjunctive adverbs. So अब ये conjunctions हमारे पास आ गए, clauses हमने समझ लिए, अब हमें करना क्या है? Clauses को join करना है. तो putting conjunctions at their right places. So कैसे कैसे कर सकते हैं? There are many interesting things to notice here. So इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, अभी तक जो हमने किया किसी को ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? पहले आई वांट टू नो दिस, कहीं कि आपको ज्यादा ऐसे ओवरवेलमिंग कि बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा एनीबडी प्लीज? अगर जो नॉन इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर कोई मराठी में थीसिस कर रहे हैं या हिंदी में कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? योर फीडबैक रियली मैटर्स, सो प्लीज शेयर योर फीडबैक. क्योंकि फिर आपके एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस आएंगे ना. सो यू, इफ यू आर क्लियर एंड इफ यू कैन प्लीज, इट विल बी रियली गुड. सो मुरली सर, व्हाट डू यू टीच? आपका इंग्लिश में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मुरली सर. Yes, ma'am. I was unmuting myself. No, myself, I'm from humanities. I teach economics and commerce. Okay, wonderful, wonderful. And my Meenal Rajdev ma'am, what do you teach? Ma'am, I teach commerce. Okay, okay. And Meenakshi ma'am, you teach English? Yes, ma'am. Okay, and ma'am, where do you teach? Mahila College. Okay, wonderful, London. wonderful. So, so good to see responses, and I really hope that everyone is responsive and really interacts and shares feedback and information. So, अब हम आते हैं joining clauses में. So, joining clauses में हमने पहले किया था, एक independent है, एक dependent है. तो हमारे कैसे कैसे clauses join होंगे? Independent हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो सकता है. 2 ही टाइप के हो सकते हैं ना. तो जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे तो उनको भी वी कैन ज्वाइन इन 3 डिफरेंट वेज. सो इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट देयर आर 3 ऑप्शंस. आपको जैसे भी ज्वाइन करना है, आपके लिए ये फैसिलिटीज है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ऑल द ऑप्शंस आते हैं. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं. हमने जैसे we have already seen this, so it is almost a revision of what we have just studied. The first one हमने क्या किया था? Coordinating conjunction. और coordinating conjunction के पहले we said there has to be a comma, है ना? So that itself is a rule. So if there's a comma and coordinating conjunction, well, you are absolutely going great. No other challenge. तो इसका रूल ही यही है, एक कॉमा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसमें हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से थे? फैन बॉयज, और फैन बॉयज में फॉर एंड नॉट बट और येट सो. सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. इसके खाली ये याद रखना है कि 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स हैं. अगर एक सब्जेक्ट और 2 वर्ब है तब आप नहीं कॉमा यूज करेंगे. It should be 2 independent thoughts. That is the only concern here. All right, so the new iPhone was more expensive than I expected. This is one thought. I had to save for a few more months before purchasing one. This is the second thought. अब आपके बीच में आ गया coordinating conjunction, so comma and so. बस. दूसरा, हम इसी चीज को कैसे यूज कर सकते हैं? Because these are the 2 independent thoughts,
we can also use a conjunctive adverb here. तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ the new iPhone was more expensive than I expected, semicolon, therefore, comma, so I had to save for a few more months before purchasing one. वो भी हो सकता है ना? और अगर मुझे कोई भी कंजंक्शन नहीं लगाना है तो I can just put a semicolon there and my sentence is good. Okay? So ये second example है हमारा semicolon, conjunctive adverbs, comma. तो ये आपका semicolon है, conjunctive adverb है, comma आएगा. We had planned to go to the beach today. However is a conjunctive adverb, so there'll be a semicolon and a comma, semicolon before however and a comma after however. It was raining, full stop. So hope this is clear with everyone. और तीसरा क्या हो सकता है, हम खाली सेमीकोलन लगा दें, कुछ भी आपको उसके साथ कंजंक्शन यूज नहीं करना है. So the ice cream shop had an amazing variety of flavors, semicolon, I could not decide which one to buy. तो अब हम इसको देखते हैं. The ice cream shop had an amazing variety of flavors, comma, but I could not decide which one to buy. The ice cream shop had an amazing variety of flavors, semicolon, however, comma, I could not decide which one to buy. The ice cream shop had an amazing variety of flavors, semicolon, I couldn't decide which one to buy. So all the three options are correct. Independent thoughts के साथ. Clear? Yes, ma'am. Yes. So there are three options and अब independent आ गया और एक dependent आ गया. So independent और dependent का खाली two ways है. Independent के three ways है, independent के two ways है. पहला डिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, या तो पहले डिपेंडेंट क्लॉज होगा या पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है. तो अगर पहले डिपेंडेंट आ गया तो कॉमा लगा दीजिए और अगर पहले इंडिपेंडेंट आ गया तो कॉमा मत लगाइए. बस इतना सिंपल है. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट देन अ कॉमा फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज. So example है whether we go to the movies or to the mall. ये dependent clause पहले आ गया तो comma लग जाएगा. I am happy either way. पर अगर मैं I am happy either way पहले कर दिया मैंने और फिर लिखा whether we go to the movies or to the mall, then there is no punctuation. Okay? So I am happy either way whether we go to the movies or to the mall. So that is the only rule here. Just two ways to connect. Independent to independent, there were three ways. Independent to dependent, there are two. What is this on the screen? Who will explain? Punctuation करने क्यों चाहिए? क्या है ये बला? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी. Punctuation इतने confusing. क्या चीज है ये? थोड़ी लाइफ में इसने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया है. So anybody, I would request anybody to read this. What's there on the screen? Is it right or is it wrong? What does it mean? Oli sir, Meenakshi ma'am, Meenal ma'am, anybody? Could you please share? वहाँ पे Ma'am, कॉमा what होना does it चाहिए. mean? What is हाँ? Yes, please share, sir. not Please, could you read? Ma'am, I What think is what in- is what के बाद semicolon, no, what is what, comma is not,
comma, is it not? Question mark. What is के बाद क्या होना चाहिए सर? What is, sorry, what is what, comma, नहीं, दो is हैं वहां पे. What is, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? comma. what is Comma. What is what is. what, is थोड़ा बड़ा पेचीदा लग रहा सोचिए सोचिए, थोड़ी उलझन वाला है, बट आई एम श्योर यू विल गेट. थोड़ा सा और सोचिए. है. What is, ma'am, it what is what is. Not is not. Is it not? Yes ma'am, could you please repeat? What is के बाद comma is what is. Not Okay. is. हाँ. काफी Not- क्लोज हैं आप, काफी is क्लोज not. हैं. Not is not. के बाद comma is it is not. it not के बाद question mark. Is it not के Is बाद it not? question mark. Question mark. ये सारा खेल पंक्चुएशन मार्क्स का है. तो अभी हम देखते हैं कि इसका मीनिंग कुछ बेटर हो सकता है क्या. Now can you read this? Could you please read What this? is what is not. Okay, what is not, is not, is it not? कुछ नहीं समझ रहा मैम. What is जो है. What is not जो नहीं है, वो नहीं है. Is it not? क्या ये सही नहीं है? Yes. So what is. What is not not. जो है Is सो it है, जो not? नहीं है सो नहीं. Hmm? वो कोई हिंदी पिक्चर जैसा लग रहा है, जो है. तो ये पंक्चुएशन मार्क्स वाला सारा खेल है ना. तो what is what is what is not is it not. अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, इसमें कॉमा भी है, सेमीकोलन भी है, फिर कॉमा भी है, सेमीकोलन भी है और पंक्चुएशन मार्क भी है. तो इसमें हो क्या रहा है? अब कॉमा और सेमीकोलन में फर्क क्या है? तो कॉमा भी पॉज है. इनका पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में होते क्यों है और बोलने में उनसे क्या फर्क पड़ता है? तो उनका काम होता है पॉज. फुल स्टॉप का भी काम होता है पॉज. फुल स्टॉप लॉन्गर पॉज है, लॉन्गेस्ट पॉज है, और कॉमा शॉर्ट पॉज है. सेमीकोलन उससे ज्यादा पॉज है और फुल स्टॉप लॉन्गेस्ट पॉज है. तो अगर हम इसे बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? व्हाट इज रुक जाइए. व्हाट इज नॉट. अब ज्यादा रुक गए. इज इट नॉट. तो क्वेश्चन आया तो आपने वहां पे आवाज आपकी रेज, थोड़ी से वॉल्यूम नीचे से, पिचिंग आपकी नीचे से ऊपर जाती है. तो जैसे अगर ये है, इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पॉजेज नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आई कैन नॉट मेक आउट एनीथिंग बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन. वेयर शुड आई स्टॉप, वेयर शुड आई पॉज, व्हाट इज नॉट इज इट नॉट. ऐसा मैं पढ़ूंगी इसे, क्योंकि मुझे पॉजेस पता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं हुए, पंक्चुएशन मार्क्स ही नहीं है, तो हाउ डू आई नो? But the moment you put the punctuation marks, I know how to read this. And I will read it. What is. Ab is pe rukiye. What is not. Or is it not? तो meaning becomes clearer. तो ये सब pauses का खेल है. क्योंकि अगर हमारे बोलने में, लिखने में पॉजेस अगर सही नहीं होंगे तो मीनिंग कभी क्लियर नहीं हो सकता. जैसे एक और सेंटेंस है, लेट्स ईट ग्रैंडमा. अब अगर इसमें मैंने पंक्चुएशन नहीं लगाया, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा,
मतलब लेट्स ईट, आइए ग्रैंडमा लेट्स ईट। पर अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो लेट्स ईट ग्रैंडमा, कि हम दादी को ही खा जाए। तो ये है पावर ऑफ पंक्चुएशन, बिकॉज इट टेल्स अस टू पॉज, वेट एंड देन प्रोसीड। नहीं तो इनका इतनी फंक्शनैलिटीज हैं ही क्यों, क्योंकि फिर तो हम एक ही तरह से पढ़ते रहते हैं ना, और मीनिंग ही नहीं समझ में आता। बट बोलना और लिखना एक टोन में तो हो ही नहीं सकता। सो you are pausing, then you are and giving appropriate pauses is very important for easy comprehension, because sometimes we may be knowing the content very well, but because the pauses are not correct, the meaning gets lost completely. So a comma is a punctuation mark. Oh my god, it's already 4. We will just do this and take a short break. So a comma is a punctuation mark, like, and that indicates a break between parts of a sentence. And why are those breaks important? Because they show the pause. Pause means reflect and go ahead. So they are like the traffic light signals. I mean, red light, orange light, and green light. No commas, move ahead. Red light, green light. So yellow light. So अगर आपकी red light है, that is you have to wait longer. And अगर yellow light है, then you have to wait, less. So commas make the meaning of sentences clear by separating words, phrases, as well as clauses. अब वो आते हैं आपके compound sentences पे, तो we will take a break now and we will resume at 6 minutes past 4. Okay, तब तक थोड़ा सा सोचिए कि what all we have done till now, and if you have any questions. So Preeti ma'am, shall we take a break for 5 minutes? Yes, ma'am, sure. Yes. So Yeah. we will resume at 6 minutes past 4. Thank you. Thank you so much. Please stay connected so that we can start immediately. And friends, I just want to share one thing. You please interact with ma'am. Those who are not able to speak, आप हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए. Language is not the barrier. बट इस यूनिट के ऊपर आपको 8 क्वेश्चंस हैं, तो आपके वो क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए. इट इज़ नॉट द unit for research, but it is there in your syllabus, so you have to crack the exam and it is there in your final 40 questions में से 8 questions इस यूनिट के ऊपर रहेंगे. तो आई एम जस्ट बॉदर्ड कि बाकी लोग सच में अटेंटिव है नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग ही पार्टिसिपेटिव लग रहे हैं मुझे बैच में. तो इससे क्या होगा, मुझे और मैडम को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कोर्स ले रही हूँ, मैडम डिलीवर कर रहे हैं, बट आपका जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा दैट मैटर्स अ लॉट. तो वेदर यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, आप अपनी डिफ़िकल्टीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट आपकी बैच मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही है, क्योंकि इसके पहले मैडम ने भी शायद देखा होगा. दिव्या मैडम, आर यू देयर? Yes, Preeti ma'am, I'm very much there. ये बैच में यस, थोड़ा ये सा बैच थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे. मतलब जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी इतने 4 साल से आई एम कंडक्टिंग प्री PhD कोर्स वर्क, yes. बट आपके सेशन में बहुत इंटरेक्शन, बहुत नॉइज होता है, हमेशा मुझे म्यूट करने के लिए बोलना पड़ता है. बट ये बैच में मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट, मतलब पार्टिसिपेंट्स उतने इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट या तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो लाइटली ले रहे हो आप लोग इस यूनिट को कि हाँ भाई चल जाएगा, आ जाएगा, इतना तो सिंपल है, क्या ध्यान देना है, ऐसा मत करिए. ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मैडम से पूछिए, ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी. फिर 22 तारीख को जो भी रिजल्ट आता है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है, तो मुझे जो लग रहा था वो मैंने शेयर किया. अभी मैडम का भी अभी ओपिनियन अलग हो सकता है, बट व्हाट आई फील वो मैंने अभी बताया. बट आप लोग देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता भी होगी, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए सेशन को. सिर्फ 2-3 जन, मीनल, मीनाक्षी एंड मुरली सर, राहुल, इससे कुछ कुछ लोग ही बातें कर रहे हैं. बाकी तो अभी देखते हैं, नंबर तो 36 दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं सेशन के बाद. बट व्हाट आई फील इज प्लीज बी इंटरेक्टिव एंड प्लीज क्लियर योर डाउट्स, है ना? बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल, absolutely correct, Preeti ma'am. Even I feel that the response is not coming जैसे हमेशा बैचेस अभी में तक जो आता है. बैचेस अपन ने ली है उसमें हाँ, ज़्यादा इंटरेक्शन very होता था, interactive.
यस, बिल्कुल एनीवेज बिल्कुल देखते हैं। यस ठीक है मैम, आप लोग यस थैंक यू सो यस, मच 5 मैम। मिनट का ब्रेक लेते हैं। सो कॉमास का हमने किया था। नाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग सम एक्सरसाइजेस आल्सो, और वो एक्सरसाइजेस हम करेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कॉमा जैसे मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद विथ यू कि जब हमारी लिस्ट भी बनती है ना तो कॉमा यहाँ पे लगा देते हैं। क्यों आप कॉमा लगाते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है? अगर मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, माय मदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ के बाद मैंने कॉमा नहीं लगाया, मैंने ऐसे ही बोल दिया ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माय ब्रदर इन लॉ इज माय नेफ्यू, क्योंकि ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू एक ही पर्सन हो गए फिर। पर ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू तो अलग अलग है ना, तो इसलिए मुझे वो कॉमा से डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो मदर कॉमा सिस्टर कॉमा ब्रदर इन लॉ कॉमा एंड नेफ्यू, अगर नहीं लगाएंगे तो मीनिंग में इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाएगा। अगर जैसे ही प्लांटेड कैबेज कॉमा कैरेट्स कॉमा एंड बीन्स, अब अगर उसने हमने कॉमा नहीं लगाया कैरेट्स एंड बीन्स, तो कैरेट्स एंड बीन्स ऐसा लगेगा एक ही साथ उसने गाजर और सेम एक ही साथ बो दिया, तो वो तो नहीं किया ना। कैबेज अलग किया, कैरेट्स अलग किया, बीन्स अलग किया, तो तीनों में वो डिस्टिंक्शन बना रहे और क्लैरिटी रहे, एम्बिग्विटी ना आए, इसलिए वहां पे हमें कॉमा लगा देते हैं। तो जब आप अगर किसी को भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस आप बोलते हैं यस आई विल डू इट, अब बोलने में भी देखिए क्या कनेक्शन है। आपने किसी ने बोला कि कुड यू प्लीज गेट मी दिस फाइल टुमारो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे यस आई विल गेट इट, आप बोलोगे यस आई विल गेट इट। तो यस के बाद आप रुक गए ना, तो जब बोलने में तो हम रुक जाते हैं और अगले वाले को बात समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, टोन होती है और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो समझ जाएगा। पर लिखने में तो हमारी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई टोन नहीं है, कोई हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, तो मैंने बोलने में तो बोला यस आई विल गेट इट, पर लिखने में अगर मैंने लिख दिया यस विदाउट अ कॉमा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो बोलने में मैंने कैसे बोला, पॉज के साथ बोला, यस आई विल गेट इट नहीं बोला, यस आई विल गेट इट। तो ये जो मेरा पॉज है ये कॉमा दर्शा देगा मेरे राइटिंग में, और ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये मेरी पॉज है, मेरी टोन का पॉज है ये वहां पे। तो जब हम राइटिंग और बोलने को दोनों को कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजेस हमारे समझने बड़े एसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि उससे एम्बिग्विटी मिट जाती है। जैसे अगेन ये सेंटेंस है, अगर आप बोलेंगे कैसे, मॉम आई एम गोइंग टू कॉलेज, ऐसा तो नहीं बोलते ना, हम कैसे बोलते हैं, मॉम आई एम गोइंग टू कॉलेज, इंट्रोडक्टरी। तो वही चीजें लिखने में भी एक्सप्रेस होनी चाहिए, नहीं तो बोलने में तो सारी चीजें सब सुन सुन के समझ जाते हैं हम, वो लिखने में जो एक बार लिख दिया वो नहीं समझेंगे, तो इसलिए ये हम वहां पे अपने पंक्चुएशन मार्क को ले आते हैं। अब आप किसी से मिलेंगे, हे हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ आर यू डूइंग, तो कॉमा आ गया वहां पे, तो इंट्रोडक्टरी के लिए आ गया। अब डेट्स के लिए भी क्या कंफ्यूजन है, डेट्स के लिए भी हम एक साथ इन शब्दों इन सेंटेंस में भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे फ्राइडे जून 8 2020 वाज अ ग्रेट डे फॉर माय फैमिली, आप बोलेंगे ही नहीं ऐसे। तो कैसे बोलेंगे, रुक रुक के बोलेंगे, क्योंकि बोलना ही जैसे सुनना, जब बोलते क्यों है, why do we speak, we speak so that the other person can understand what are we talking about, है ना। और लिखते क्यों है, so that the reader can understand what we are reading about। तो बोलने में हमें ये सब चीजें इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि लिसनर का जो रिसीवर का जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है ना, वो बेहतर तरीके से उस चीज को ग्रास्प कर सकता है जब ये पॉजेस होंगे। तो मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकती हूँ, फ्राइडे जून 8 2020 was a great day for my family। अब
बिल्कुल मीनिंग उसका समझ में आया कि नहीं आया मालूम नहीं, पर मैं इसी चीज को ऐसे बोलती हूँ, फ्राइडे June 8, 2020 was a great day for my family. तो अब मैंने क्या एम्फेसाइज कर दिया, फ्राइडे June 8, 2020, तो ये सब चीजें रजिस्टर हो जाएंगी, तो ब्रेन में ये सब इंफॉर्मेशन जाने के लिए हमें ये सब टूल्स हैं, इसीलिए ये टेक्निकलिटीज हैं। ओके, सो जब भी आप, अब फ्राइडे दिन है, जून 8 तारीख है, 2020 ईयर है, अगर हम इसके बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं करेंगे कॉमा के साथ, तो समझ में क्या आएगा, है ना, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए क्लैरिटी आ जाती है जब हम वहां पे अपने कॉमा को यूज कर लेते हैं। तो सर जब आप लिख रहे हैं थीसिस में भी, तो एक बार अगर हम अपने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि भाई ये मेरे रीडर को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो जब हम उस परसेप्शन से देखने लगते हैं तो हमें लगता है अच्छा ठीक है, शायद ये कॉमा यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग सेंस, एंड यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि ये इंडिपेंडेंट थॉट यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट थॉट शुरू हो रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है, तो कुछ यहाँ पे मिसिंग है। जैसे व्हाट इज नॉट, इज इट नॉट, तो वहां पे क्या था, शब्द तो लिखे हुए थे, पर because there was no punctuation mark, we could not understand how to read it and how to comprehend and how to understand. So that is why these little things are important. Okay, अब अगर हम सिटी और स्टेट की बात करें कि आई वेंट टू चेन्नई, तमिलनाडु, अब चेन्नई ये तो हिंदी में भी कॉमास आते हैं, कहीं भी भाषा में कॉमा आएगा, क्योंकि चेन्नई के बाद और तमिलनाडु, नहीं तो चेन्नई तमिलनाडु पूरा स्टेट तो होगा नहीं, तो चेन्नई कॉमा तमिलनाडु। अभी आप कोई बात कह रहा है तो ये भी हिंदी में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मराठी लिटरेचर पढ़े, हिंदी लिटरेचर पढ़े, कोई भी भाषा का लिटरेचर पढ़े, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास तो सब जगह होते हैं, क्योंकि कोटेशन मार्क्स का क्या मतलब होता है, कोटेशन माने कोट, हम जैसे अब्दुल कलाम जी का कोई कोट यूज करें, या जैसे हम, क्योंकि he worked, he served as the president of India, but what was closest to his heart, he said I want to be remembered as a great teacher, that is his quotation. So these are the words of Abdul Kalam ji. अब अगर हम उनमें इन्वर्टेड कॉमर्स ही नहीं डालेंगे तो कोई भी बोलने लगेगा कि भैया मेरा भी यही कोट है, तो क्या क्रेडिट रह जाएगा अब्दुल कलाम जी को। तो जब उनके हम कोटेशन डाल देते हैं तो हम कहते हैं भैया ये इनका ये कोटेशन है, अब इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, तो ये इन्हीं के कहे हुए शब्द हैं, तो इसलिए ये कोटेशन मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसीलिए अभी ये लोग भी जब कभी पॉलिटिशियंस हैं या एक्टर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, ये जब मीडिया में उल्टे सीधे बयान दे देते हैं तो उनके स्पोकन वर्ड्स कैन गो अगेंस्ट देम और दे कैन बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर देम, सो दैट इज द पावर ऑफ द कोटेशन मार्क्स। इज दिस क्लियर what I'm talking about? ये Yes. सीखने के Yes, तरीके ma'am. Yes, ma'am. ये सीखने के तरीके से, ये तो इसलिए कोटेशन मार्क्स जो है, अब आप लिख रहे हैं, आप थीसिस लिख रहे हैं, आप किसी के रिसर्चर्स के, साइंटिस्ट के कोटेशंस लिखेंगे, तो अगर आपने उनको तो कोटेशन मार्क्स में रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी ना, कि भाई ये इन्हीं के कहे हुए शब्द हैं, ये हमारे और आपके शब्द नहीं है, दे आर द एमिनेंट पीपल हु हैव स्पोकन लाइक दिस। सो अगर हम कोटेशन मार्क्स करेंगे तो उससे पहले हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही एक धड़ल्ले से गाड़ी बिना रुके हमारी चल नहीं सकती, गाड़ी को भी रुक रुक के चलना पड़ता है, तो ये कॉमा आएगा, प्रिपेयर करेगा, ओके देयर इज अ कोटेशन मार्क कमिंग एंड देन वी आर रेडी टू रिसीव। ओके, सो ये अब आपने अगेन आई स्टडीड लिटरेचर, अब उसके बाद रुक गए क्योंकि समथिंग कॉन्ट्ररी इज कमिंग अप, नॉट सोशियोलॉजी, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे आई स्टडीड लिटरेचर नॉट सोशियोलॉजी, समझ में नहीं आएगा। आई स्टडीड लिटरेचर, दिमाग को समझ में आ गया, नॉट सोशियोलॉजी, ये भी समझ में आ गया, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कॉमा के कारण, नहीं तो मीनिंग ही नहीं समझ में आएगी अगर हम वहां से कॉमा हटा देंगे।
तो जब कभी कभी हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे आई कैन जैसे हमने किसी फ्रेंड के बारे में बोला, माय फ्रेंड हु वर्क्स इन Amazon इज हियर। अब माय फ्रेंड हु वर्क्स इन Amazon, ये मेरे फ्रेंड के बारे में एडेड इंफॉर्मेशन है। तो ये इसका मुझे बीच में ये फ्रेज हो गया ना, मॉडिफायर हो गया। तो अब भैया इसको मुझे कॉमा से बताना पड़ेगा कि मेरा फ्रेंड जो Amazon में काम करता है, तो वहां पे मैं कॉमास ऐड कर देंगे। तो जैसे यू कैन विन अ सेल्फ हेल्प बुक बाय शिव खेरा इज अ बेस्ट सेलर, और ये जो इंफॉर्मेशन कॉमास में होती है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो यू कैन विन एज अ बेस्ट सेलर इज ऑल्सो अ गुड सेंटेंस। बट मुझे अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, माई फ्रेंड हु इज द प्रिंसिपल ऑफ सच एंड सच कॉलेज इज अ वेरी गुड सिंगर। So my friend is a good singer, that itself is a complete sentence. But who is the principal of such and such college? ये added information है, तो मुझे वो commas में डालनी पड़ेगी। Yes, I hope it's getting clearer. तो चलिए अब आपके साथ एक एक्टिविटी करते हैं। जल्दी से बताइए इसके क्या क्या आंसर्स होंगे commas के। Radhika selected a huge, colorful, comma and beautiful painting. ओके, ह्यूज और कलरफुल दोनों सेम चलेंगे कि उनके बीच में कुछ कॉमा आएगा? Huge, comma हाँ, and huge, comma, हाँ, colorful, comma and beautiful painting. absolutely, yes. Next, Running around the house, comma, the dog was abruptly stopped by a fence. Dog was absolutely correct. Next, If the opposition should, comma, win our candidate. Sorry. If the opposition should win, comma, our candidate will never have any political future. हाँ देखिए आप बोलने में भी रुक जाएंगे। If the opposition should win our candidate, तो जहां पे आप रुकेंगे वहां पे कॉमा है। Yes. Next, Gracefully, Gracefully, comma, Gracefully, comma, lightly, comma, and daintily, the dancer moved across the stage. क्या मैम बात lightly के है। बाद comma आएगा? हाँ हाँ, and से पहले आएगा ना। हाँ, नेक्स्ट, Ma'am, Glamour, comma, fashion ग्लैमर के comma, बाद आएगा ना। comma, the women's fashion magazine, comma, Glamour, के पहले कॉमा की क्या जरूरत है? ग्लैमर कॉमा द वुमेन्स फैशन मैगजीन, क्योंकि ग्लैमर क्या है, अगर आप बोले ग्लैमर इज वेरी पॉपुलर, तो भैया ग्लैमर सभी को बहुत अच्छा लगता है ग्लैमर, क्योंकि वो शोबाजी है, तड़क भड़क है। पर यहाँ पे हम ग्लैमर किसके लिए बोल रहे हैं? द वुमेन्स फैशन मैगजीन, सो दैट इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सो वो हमें कॉमा में करनी पड़ेगी। ठीक है, मैम one doubt. हाँ जी। ये जो था ना मैम, ग्रेसफुली लाइटली के बाद कॉमा बोला गया, ग्रेसफुली कॉमा लाइटली कॉमा, तो हाँ। एंड के पहले कॉमा फिर से आ रहा है। लाइटली के बाद कॉमा नहीं आएगा। नहीं, ग्रेसफुली कॉमा लाइटली कॉमा एंड डेंटली, एंड से पहले आएगा। है। हाँ, एंड के पहले मैडम बट अभी तक यही सुना था कि एंड के पहले तो हम कॉमन नहीं लगाते ना। वही हम बता रहे हैं ना, जैसे हमने आपको अभी पीछे वाला एग्जाम्पल दिया हाँ, था, हाँ, माय हाँ। मदर, माय हमेशा मेरा यही सिस्टर, डाउट हो रहा है। माय ब्रदर इन लॉ एंड नेफ्यू। सो माय ब्रदर इन लॉ अलग है, नेफ्यू अलग है, तो उन दोनों के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। वैसे ही There are three different identities are there. हाँ, तो ग्रेसफुली इज अ डिफरेंट क्वालिटी, लाइटली इज अ डिफरेंट क्वालिटी, डेंटली इज अ डिफरेंट क्वालिटी। तो हम इनके बीच में नहीं, तो लाइटली एंड डेंटली दो ही, अगर खाली लाइटली एंड डेंटली द डांसर मूव्ड अक्रॉस द स्टेज, तो बस हमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। बट ग्रेसफुली और लाइटली एंड डेंटली, तो तीनों अलग अलग क्वालिटीज हैं, तो हमें एंड से पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये डेट आ गई, जो वॉज बॉर्न ऑन May 7, 1959, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम उसे, तो हमें कॉमा डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालना पड़ेगा? May 7, comma, On के बाद May 7 के बाद 1955, हाँ, 1955, comma, एंड July and his 7, best friend, comma, 1955. comma, हाँ हाँ, Mr. and Mrs. Sharma, my parents' best friends,
Mr. and Mrs. Sharma, comma, my my हाँ, parents' best friends, comma, parents' sat best in friends. front of us at the football game. Sat in front absolutely, of. absolutely correct. India became a free country on 15th August comma, 1947. 1947, Comma full stop. 1947. ये देखिए, अच्छा यहाँ पे ये ह्यूज कलरफुल एंड ब्यूटीफुल हाउस का करेक्ट है, विन का करेक्ट है, डेंटली करेक्ट है, ग्लैमर करेक्ट है। 1955 जब आपने ईयर कहा और उसके बाद अगर कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे भी कॉमा आ जाएगा, Yes, ma'am. क्योंकि हम 1955 के बाद सेमीकोलन रख सकते हैं? नहीं सेमीकोलन नहीं कर सकते, कॉमा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप नंबर से अब शब्दों की तरफ आ गए हैं ना, तो उनके बीच में आपको कॉमा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सही था। अब हम यहाँ पे सेमीकोलन पे आते हैं। तो सेमीकोलन का भी काम है पॉज, है ना, कॉमा का काम है पॉज, सेमीकोलन का काम भी है पॉज। तो ये पॉज थोड़ा सा अब देखते हैं सेमीकोलन कहाँ आता है मैम, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए, अब मुझे सेंटेंस बताइए, I'll visit you tomorrow, ये एक कंप्लीट थॉट है। You can give me your final decision then. तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोल सकती थी? I'll visit you tomorrow and you can give me your final decision then. तो मैं and से पहले कॉमा लगा देती। I'll visit you tomorrow, therefore वो फिर सेमीकोलन आ जाता। पर मैंने कोई कंजंक्शन अगर नहीं लगाया है और दो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं तो मैं बीच में सेमीकोलन लगा दूंगी। क्लियर? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं आ रहा है पर दोनों थॉट्स इंडिपेंडेंट है। अगर आपने यहाँ पे कॉमा लगा दिया तो इसको बोलते हैं रन ऑन सेंटेंस और वो गलत हो जाता है। तो I'll visit you tomorrow, you can give me your final decision, नहीं, वो सेमीकोलन आना है वहां पे। चलिए इसकी भी एक्टिविटी करते हैं, कॉमा और सेमीकोलन। चलिए बताइए। She told me to wait, comma, but I didn't. Sorry, yes, absolutely. He told me to wait, comma, but I didn't. That was Trisha. Semicolon. my Comma, friend. my friend. सेमीकोलन नहीं Comma आएगा आएगा। सर, यहाँ पे Comma. फ्रेंड के बारे में ही बताया जा रहा है आगे, तो कॉमा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, सेमीकोलन मैम। सेमीकोलन, Semicolon, however fourth से line. पहले आ गया ना। हाँ, the guests were Tom, an architect. Semicolon. कॉमा मैम। सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन। क्यों आएगा सेमीकोलन? स्पेसिफिक है रेचल। नहीं, टॉम Different एन person. आर्किटेक्ट, टॉम कॉमा एन आर्किटेक्ट, ये एक आइडिया खत्म हो गया। Okay, अब okay. रेचल क्या है? डॉक्टर। Doctor. बिल क्या है? डेंटिस्ट। तो इन सब के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सेमीकोलन। अजून 15 मिनिट आले. हाँ, हेलो, लिखी गया. यस सर, आई कांट हियर यू। ठीक है, तो टॉम एंड आर्किटेक्ट सेमीकोलन, जहां पे आइडिया चेंज हो रहा है वहां पे सेमीकोलन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बताइए, द गेस्ट वर जर्मन, The Comma. guests were German, comma, Comma. French, French, comma, comma, and and Italian. Comma. हाँ, he didn't Italian. really laugh at them. Comma. Comma. Just comma. Semicolon. Two independent thoughts है ना, Semicolon. semicolon. Yes, I like to read. कॉमा मैम. Semicolon. हाँ, नहीं यहाँ पे Comma. and already है ना, तो कॉमा आएगा। कॉमा. Okay. He traveled to Frankfurt, Germany. Semicolon. Semicolon. हाँ, Paris, France, absolutely semicolon. correct. Paris, France, semicolon, Semicolon. and Barcelona, Spain. Barcelona, Spain. थोड़ा सा और करते हैं। क्लियर हो रहा है अब सर? आपके लिए, सबके लिए क्लियर हो रहा है क्या है ये कॉमा ma'am. सेमीकोलन Yes, का खेल? Yes ma'am, yes ma'am. Now it's Yes, yes, interesting. Yes. Okay. चलिए बताइए, he is traveling to Bangalore, Bangalore, comma, Manila, comma, Comma, Manila and and Tokyo. Tokyo. Yes. नहीं तो मनीला एंड टोक्यो एक ही जगह हो जाएंगे, तो हमें तो डिस्टिंग्विश एक ही करना है ना।
तो he is traveling to Bangalore. India, semicolon. बैंगलोर के बीच में कुछ आएगा. Bangalore, comma, India, India, semicolon. India semicolon, India, comma, comma, Manila, Philippines, comma, Philippines, Semicolon, Manila, comma, Philippines, semicolon, Tokyo, comma, Tokyo, Japan. comma, Tokyo, Japan. comma, Japan. Absolutely bang on. Next. The sandwich choice were paneer, comma, cheese, comma, lettuce, comma, and tomato. Absolutely paneer, comma, के बाद cheese, semi- comma, lettuce, comma, and tomato. Wonderful. Next. and tomato. The sandwich choices include tomato, comma, paneer, comma, and lettuce. Semicolon आएगा इसमें. हाँ, सेमीकोलन आएगा क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हो गया टमेटो पनीर एंड लेटस. फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया cheese, cucumber and lettuce. हाँ, Ma'am, it will फिर be क्या like जाएगा tomato. सेमीकोलन. Carrot, capsicum and cheese. हाँ, तो चीज कॉमा क्यूकम्बर कॉमा एंड लेटस सेमीकोलन कैरेट Semicolon. कॉमा कैप्सिकम कॉमा Capsicum, एंड comma, चीज. cheese, full stop. हाँ, so the flags were blue, comma, Blue, Blue, comma, comma, aqua, aqua, comma, and purple. purple. aqua, comma, the and shirts purple. were red, comma, white, Comma, and white, blue, Red, semicolon, comma, green, comma, comma, white. yellow, comma, and white, Semicolon. semicolon, yellow, Semicolon comma, आएगा black. यहाँ पे. Yellow, comma, black. purple comma yellow comma black. Very nice. So अब सेमीकोलन और कोलन का इसका कंफ्यूजन चेंज हो रहा है. I mean सेमीकोलन और कॉमा का डिफरेंस क्लियर हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Wonderful. Very nice. Share these slides. Huh? Would you share these slides? Share slides are already there. No. I mean No, later with on. Preeti ma'am. Yes. Okay. I'll share this. So now we come to colon. तो इसको सेमीकोलन क्यों बोलते हैं? Look at the sign of semicolon. It is comma और ऊपर से colon actually is 2 dots. But semicolon में it is like half colon, half comma. So we come to full colon now. So semicolon and comma में it is, I mean semicolon works as the pause which is longer than the comma. अब हम कोलन पे आते हैं. तो कोलन क्या करता है? ये हमारे जब भी we all teachers are very fond of making question papers और उसमें हम कहते हैं ना list the following, illustrate the following. तो उसके बाद आपका कोलन आता है, वो जो पंक्चुएशन साइन है. आप टाइम लिखते हैं तो 7:30 में ये बीच में कौन सा पंक्चुएशन साइन आ रहा है? दिस इज अगेन कोलन. और कभी कभी जब हम कहीं पे साइन लिखा हुआ देखते हैं तो वो भी जैसे द साइन वाज ऑल टू क्लियर, डू नॉट स्विम इन द सी. सो ये साइन बता रहा है डू नॉट स्विम इन दिस एरिया इज अ एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ द फर्स्ट थॉट. तो ये भी कोलन के थ्रू बताया जा सकता है. यस मैम, एनीबॉडी विशेस टू से समथिंग? और कभी कभी तो जब हम उसी चीज को द साइन इन द हॉस्पिटल रेड वेरी क्लियरली मेंटेन साइलेंस, तो इसके बीच में क्या आएगा? कोलन, है ना? बिकॉज साइन रेड, साइन जो था हॉस्पिटल में वो यही था कि आप साइलेंस मेंटेन कीजिए. अब कभी कभी हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, they were not responding to anything in a positive manner, they were gripped with this feeling and that name of the feeling was fear. तो they were gripped with this feeling semicolon fear. तो उसी चीज का एक्सटेंशन है वो. वहां पे आप डैश भी लगा सकते हो. तो मैंने आपको कल बताया था कि हाइफन और डैशेस हम करेंगे. So the sign was all too clear, dash, do not swim in the sea. The reaction of the audience signified one overwhelming feeling, dash, fear. So the name of that feeling was fear. Okay, so colon or dash in interchangeable hai. Is that clear? Otherwise colon ke 2 functions hai.
ये लिस्ट के लिए यूज होता है और टाइम के लिए यूज होता है, ज्यादा इसका कंफ्यूजन है ही नहीं। सो ये है आपकी एक्सरसाइज। हम फुल स्टॉप पे आ जाते हैं। अगर मुझे कल टाइम मिलेगा तो आई विल डू दिस एक्सरसाइज टुमारो। सो फुल स्टॉप पे आ जाते हैं। फुल स्टॉप इज वेरी वेरी सिंपल. It is always used at the end of a sentence and it is also used in abbreviation. जब भी हम short forms करते हैं और decimal points करते हैं, बस full stop में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। ज्यादा confusion आपका खाली कॉमा और सेमीकोलन में ही होता है, और कॉमा में आने के लिए क्योंकि हमको clauses समझने पड़ते हैं, so that becomes a little maybe difficult. बट एक बार आप वो समझ गए तो फिर तो अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज ऑल वेरी वेरी इजी। फुल स्टॉप। अब मतलब कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये तो सभी को पहले से ही आता है। सो देयर इज एंड देयर इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू क्लॉजेस। सो सिंपल सा है ये। सो व्हेनेवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अगर आप मैडम एक हाँ क्लैरिफिकेशन चाहिए। हाँ जी सर। लास्ट स्लाइड पे 6 AM लिखा था आपने, तो स्मॉल इसमें A.M. लिखा था, तो वो हम लोग जब एब्रिविएशंस करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल्स में ही करते हैं ना उसको। AM भी मैंने जब लिखा AM या PM जब भी लिखा हुआ देखा है तो इट इज ऑलवेज इन कैपिटल्स। कैन इट बी इन स्मॉल लेटर्स ऑल्सो? एब्सोल्युटली। AM और PM को हम स्मॉल में ही लिखते हैं, क्योंकि PM क्या होता है, अगर कैपिटल में अगर हम लिखेंगे तो टाइम के साथ अगर आप जब भी लिख रहे हैं 7 AM 9 AM 9 PM, स्मॉल लेटर्स में लिखना इज एब्सोल्युटली ओके। बल्कि मैंने नहीं देखा है कैपिटल में लिखे हुए, मैंने जहाँ देखा है वो स्मॉल में ही देखा है I ज्यादातर। too. Yes, but I'm happy that you asked this question. So, क्योंकि capital में लिखेंगे तो PM will stand for Prime Minister also, and it may जब वो रहता है तो it is always capital. That cannot be small because that is our Prime Minister and that's a very reputed designation. बट AM PM में जब कैपिटल लेटर्स भी कहाँ आते हैं, अभी हम कैपिटल लेटर्स भी करने वाले हैं। कैपिटल लेटर्स कहाँ आते हैं, जहां पे प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं, और ये AM और PM आर नॉट प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स को अगर आप एब्रिविएशंस में करेंगे तो आपको, या डेजिग्नेशंस हैं या टाइटल्स हैं, तो आपको वो हमेशा कैपिटल में करना पड़ेगा। दैट इज अ रूल। पर जो AD और चीजें, BC में वो कैपिटल आता है। हाँ AD और BC जब अपन ईयर के बारे में लिखते हैं तब कैपिटल हाँ आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो कैपिटल में आता है। और आपका जैसे टाइटल में भी आप लिखते हैं तो कहाँ पे कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, कौन से स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, वो भी हम करने वाले हैं अभी। ओके, सो फुल स्टॉप तो हमारा डेसिमल पॉइंट के लिए आता है और एब्रिविएशन के लिए आता है। और एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम अभी करेंगे उसको, अपॉस्ट्रोफी जब आएगा तो वी विल जस्ट डू दैट। एनीवेज, सो क्वेश्चन मार्क आता है दो चीजों में। एक तो जब डायरेक्टली क्वेश्चन है तब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और जब क्वेश्चन टैग है तो isn't it, won't you, shall we, ये सब जब क्वेश्चन टैग्स आएंगे तभी भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर आपने उसको चेंज कर दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो हिंदी में भी हो या इंग्लिश में हो, उसको क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, वहां पे फुल स्टॉप आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ रूल। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज्ड or replaced by a full stop, so full stop by a full stop in reported speech, then question mark is replaced by a full stop in reported speech. Okay, because of the sentence construction change. अब एक्सक्लेमेशन मार्क तो हमारे बड़े सिंपल से लगते हैं, पर मुझे लगता है ये इतना
पावर है इस एक्सक्लेमेशन मार्क में कि हम इसको आजकल मैसेजेस में भी वी आर यूजिंग इट अबंडेंटली, बहुत यूज करते हैं हम इसे, क्योंकि हर चीज में हाउ हैप्पी आई एम फॉर यू एंड देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हैप्पी बर्थडे देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉन्ग्रेचुलेशंस देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये क्यों हम एक्सक्लेमेशन मार्क कर देते हैं? बिकॉज एक जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, अगेन लाइक आई सेड, इफ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर and if I say how happy I am for you, you will understand what exactly I am feeling. But मुझे अगर खाली लिखना है किसी को कि how happy I am feeling for you और full stop लिख दिया, that means I am not showing my feelings effectively. But if I put an exclamation mark, then all my feelings are transferred. So जब भी हमारी फीलिंग्स की बात आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद हम फुल स्टॉप भी लिख सकते हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद इफ आई एम राइटिंग दैट एक्सक्लेमेशन मार्क, it is directly transferring what I am feeling. So ये exclamation marks का जादू है, पावर है। तो जब भी, हालांकि academic writing में you will not be using it that much because informal writing, but हम otherwise informal भी तो कितना messages इधर उधर भेजते रहते हैं। So oh God, look out। अब अगर यहाँ पे exclamation mark नहीं होता तो it could have been just oh God, बस that's it। बट अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आपको उसको बोलने का तरीका चेंज हो गया। ओ गॉड, माने देयर इज समथिंग वेरी समथिंग व्हिच इज मूविंग यू एट अ डीप लेवल हैज टेकन प्लेस, लुक आउट। तो लुक आउट ऐसे भी बोल सकते हैं, पर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एवरीथिंग चेंजेस, व्हाट अ लवली डे ऐसे भी बोल दीजिए। पर अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, व्हाट अ लवली डे, आपकी सारी फीलिंग्स उसके साथ ट्रांसफर हो गई। सो ये खाली एक पंक्चुएशन मार्क से आपका मीनिंग चेंज हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, क्योंकि वही बॉडी लैंग्वेज तो दिखेगी नहीं किसी को, तो आप मतलब just simply what do, how do you transfer what you are experiencing or what you're feeling? So this is the exclamation mark does that work. All right, so this is what we had for today. Apostrophe is there, but I don't want to start it now, or I shall just introduce it and then we can do it tomorrow. बस खाली इतना ही याद रखिएगा कि apostrophe का साइन क्या है। This is O clock के ऊपर apostrophe का साइन, and there are two kinds of apostrophe. One is a contraction apostrophe where we do the short forms, and when we are the other kind is possessive apostrophe where it shows the possession. तो ये possession वाला हम कल करने वाले हैं। Okay, so this is what we did for today, and I'll just quickly revise क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको इजी लगेगा, आपको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। मॉडिफायर्स वाला हम छोड़ देते हैं, क्लॉजेस हम छोड़ देते हैं, ये सब आपको खाली इंट्रो के लिए था। कंजंक्शंस भी हमने किया, ये सब। इसके अलावा हमने जॉइनिंग क्लॉजेस के 3 फंक्शंस देखे। इंडिपेंडेंट के 3 वेज हो सकते हैं, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के 2 वेज हो सकते हैं। फिर हम पंक्चुएशन पे आए, कॉमा पे आए, कॉमा के कंपाउंड सेंटेंसेस। डिपेंडेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, कॉमास इन लिस्ट्स किया हमने, कॉमा विद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स किया, डेट्स के लिए किया, सिटी स्टेट के लिए किया, कोटेशन मार्क्स के लिए किया, निगेशन इन अ सेंटेंस के लिए किया, पॉजिटिव्स के लिए किया। फिर हमने ये एक्सरसाइज, और अब हमने सेमीकोलन किया, फिर हमने ये एक्सरसाइज की, फिर हमने कोलन किया। कोलन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वी डिडंट डू दिस एक्सरसाइज टुडे, वी विल डू इट टुमारो इफ वी गेट टाइम। आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो रहा था। और हमने फिर फुल स्टॉप किया, क्वेश्चन मार्क किए, एक्सक्लेमेशन मार्क किया, और अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पे आज हम खत्म कर रहे हैं। हालांकि there were quite a थोड़ी सी चीजें थी जो मुझे करनी थी, but I couldn't do that, so I'll end here. Thank you so much. If you have any questions, then we can share those answers. नहीं तो we can close now. Ma'am, please share PPT.
Okay, so you Ma'am, this just initial PPT is already there, na? That you have already shared with me. yes, it is with ma'am. Yes. And Friends, it ma'am is will share. already uploaded in our Genomio site. Mechanics of Writing का PPT मैंने already डाला हुआ है अपने site पे. You just go through it. Yes, so we have come to the end of the session कुछ today. स्लाइड्स Thank मिसिंग you लगते so हैं फिर much. इसमें। हाँ, हाँ? मैडम ने कुछ अपडेट किया है, बट बेसिक पीपीटी वही है। जो अपडेटेड है वो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। इसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसमें ये अपडेटेड स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएगी, बट बेसिक जो पीपीटी है वो ऑलरेडी अपने जीनोमियो के साइट पे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टुडेज सेशंस। Thank you Yes, so thank you, much, ma'am. ma'am, for Tomorrow this also opportunity. same time 2 to 5. Yes, yes, And and tomorrow we thank will you. do practice questions. Yes. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you all the wonderful participants for being interactive. I hope that this energy continues for tomorrow's session also. Please come prepared with lots of questions so that we can have a wonderful interactive session. Thank you so much. Please take care. Thank you, Preeti ma'am. Bye bye. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, Thank you. ma'am. See you tomorrow. Bye, ma'am. Bye. Friends, please don't leave the meeting. Give your attendance. Amruta Yadav. अमृता, अनम्यूट करके प्रेजेंट ही दीजिए, अदरवाइज आप लोगों की आज की एब्सेंट ही लगेगी। आई एम टेकिंग वर्बल अटेंडेंस। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. अमृता, मोहम्मद खान, रिजवान खान, जो लोग मुझे एब्सेंटी दिख रही है उनकी आज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। हुसैन, उमे सलमा हुसैन, प्रेजेंट मैम। प्रणाली चौधरी, Present, ma'am. हर्षनंद रामटेके, यस मैम। सोनाली पारदी, एब्सेंट। मीनल राजदेव मैम, Present. मंगेश जायसवाल सर, मंगेश जायसवाल, यस मैम। प्रमोद वडस्कर, एब्सेंट। सौरभ पौनीकर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ज्योत्सना श्री हेलो। पात्रा, ज्योत्सना श्री Present, ma'am. Present, ma'am. यस यस। स्वाति भोगटे, प्रेजेंट मैम। पुष्पा देवतळे, Present, ma'am. Present. सोनाली रेवनकर, सोनाली रेवनकर। देखिए, मीटिंग ऑन करके आप लोग नहीं रहते तो आपकी जितने भी लोग अभी प्रेजेंट ही नहीं दे रहे उन सबकी एब्सेंट ही लगेगी आज के। जरीन खान, Present, ma'am. मयूरी उमेकर, प्रेजेंट मैम। नितिन सेलोकर, प्रेजेंट मैम। सचिन झाड़े, Present, ma'am. राहुल भेंडे, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। निशांत बुराड़े, Yes, ma'am. I'm present. ओम प्रकाश मंत्री, Yes, ma'am. प्रेजेंट मैम। ओम प्रकाश, यस। मुरली सर, प्रेजेंट मैम। मंगेश जुनगरे, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी पौनीकर, Ma'am. प्रीति मेश्राम, प्रीति मेश्राम, एब्सेंट। सुशील कुमार चौहान, सुशील कुमार चौहान, एब्सेंट। नेहा पांडे, नेहा, Ma'am. आपका मिश्रा लिखना है कि पांडे लिखना है? मैम अभी पांडे ही कर दीजिए। तो आप ज्वाइनिंग करते समय भी वैसे ही करिए, क्योंकि जब मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ ऑनलाइन अच्छा। तो पांडे ओके। के यहाँ पे एब्सेंटी आती है, तो आप कल जब ज्वाइन करेंगे तो उसको एडिट कर लीजिए। ठीक है मैम, बट मैंने एनरोल नेहा पांडे के नाम से किया है, मतलब फॉर आपको आज जो पीएचडी। लिस्ट मिली है उसमें देखिएगा, करेक्शंस अगर है तो कर दीजिए।
Okay, ma'am. श्रद्धा देशपांडे, श्रद्धा देशपांडे, सोनल भले भाले, Yes, ma'am. खुशबू राठी, खुशबू राठी, मुझे उनका नाम दिख रहा है लेकिन वो लोग अटेंडेंस दे नहीं रहे, तो आई एम मार्किंग देन एब्सेंट। आप लोगों को सिर्फ मीटिंग ऑन करके बैठना नहीं है, कोर्स अटेंड करना है। तस्नीम इस्लाम, क्या चीज करते हो? Yes, ma'am. Present. भावरव बाळबुधे, Yes, ma'am. Present. वनीता बेले, Yes, ma'am. Present. हेमंत देशमुख, Yes, madam. Present. देखिए आज जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंट ही नहीं दी है उन सब लोगों को अपसेंट मार्क किया है, भले ही आप लोगों ने सुबह अटेंडेंस मार्क की होगी। मैम प्रमोद वड़स्कर प्रेजेंट। हो मेरा जरा केले मार्क केले, बट दिस इज द रियलिटी। ऑन पेपर कितने लोग हैं और रियल में कितने लोग हैं। तो जो लोग आज एब्सेंट है उनको नेक्स्ट कोर्स में फिर से 6 घंटा करने के बाद ही वो लोग सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली कि ये ऑनलाइन कोर्स है, किया तो चलेगा नहीं किया तो चलेगा। डेली और इंटरमिटेंटली यू विल बी हैविंग योर अटेंडेंस, सो यू हैव टू बी प्रेजेंट। और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपको सीरियसली करना है नहीं करना है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोगों को ही झेलने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। सो दिस इज फॉर द डे। मॅडम अमृता प्रेझेंट. कुठे गेली होती अमृता जेव्हा अटेंडन्स चालू होती तेव्हा? मॅडम माझं बाळ थोडा लहान आहे, थोडासा मला प्रॉब्लेम झाला थोडासा. बरं ठीक है, ठीक है, तो कल मिलेंगे अपन 10:15 बजे। See you tomorrow. सॉरी क्या मैम प्रमोद वड़स्कर अटेंड किया ना मैडम? श्रद्धा देशपांडे. कहाँ गए थे मैडम? श्रद्धा मैडम? मैम आई एम हैविंग अ पावर कट, सो नेटवर्क थोड़ा ये हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क पे चल रहा है तो वो ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, चलिए कल मिलते हैं 10:15 बजे। सौरभ पावणेकरचा अटेंडन्स लागला का? थैंक यू मैम. See you tomorrow at 10:15. मॅम सौरभ पावणेकरचा अटेंडन्स लागला